हाँ जी पुੱਤਰ ਅੱਗੇ मूव ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3D ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ABC ਤਿੰਨ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋ ਅਗਰ ABC 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਆ ਜਾਣ ਠੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੋ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਵਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ABC ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ABC ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10th 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ A ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਬਚੇ B ਤੇ C ਵਾਲੇ ਟਰਮਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ B 3C 2B ਤੇ C A ਵਾਲਾ ਓਮਿਟ ਕਰਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ C ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ B ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 1 into 1 ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ ਸੋ 2 into 3 6 ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ -3 ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ 2 into -3 ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ 1 ਮਾਈਨਸ -6 ਹੋਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਤੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ A ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਕਵਰ ਕਰੋ ਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ +1 into +1 1 ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ -6 ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਆ ਗਈ B ਦੀ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ B ਦੀ ਸੋ A ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ B ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ C ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਸੋ ਹੁਣ B ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ B ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ B ਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ A ਤੇ C ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ 2A A 3 C ਤੇ C ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਸੋ 1 into 2 ठीक है माइनस 1 into 3 ठीक है दैट इज 3 क्लियर पुत्र तो हुण C वाले ते आ जाओ प्लस C वाला कॉलम कवर कर लो फिर ए बी दे बच गए सो 2 into 2 4 माइनस 1 into 1 दैट इज 1 सो इत्थों तुहाडे को ए बी सी दी रेशो आ जाएगी ठीक है वी कैन सी के A बाय -5 इज इक्वल टू आ गया -1 ऊपर भी माइनस है B बाय 1 इज इक्वल टू C बाय 3 सो A रेशो B रेशो C कितना आ गया -5 रेशो 1 रेशो 3 नो या एम भी ले सकते हो कि लेट दिस बी लैम्डा तो A आ गया -5 लैम्डा B आ गया लैम्डा C आ गया 3 लैम्डा देयरफॉर रेशो इज -5:1:3 और ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ABC ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਮ ਨਾਰਮਲ ਔਰ ਸਮ ਲਾਈਨ तो ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਆ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅੰਦਰ तो ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ the DRs is that clear so I hope this thing is clear so ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ somehow ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ तो एक ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 1 ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ मतलब अगर मैं लेट्स से एक A वेक्टर मानना जैसा लिख लो बात समझो AI प्लस BJ प्लस C के एक B वेक्टर मान ला आ कोफिशिएंट वाला ना A B C वाला एक वेक्टर मान लिया ठीक है B वेक्टर मान लो इधर कोफिशिएंट है जिवें 2 1 ते 3 अरे लिख लो मैं समझाना मैं की कहना चाह रहा 2I प्लस 1J प्लस 3 के ठीक है C वेक्टर मान लो नीचे वाले दे कोफिशिएंट 1 2 1 1I प्लस 2J प्लस K ठीक है ऐदा लिख लिया नाउ अगर मैं तीन वेक्टर मान ला ABC ए किहड़ा मन्निया ABC वाला है ना ABC नू लैके कोफिशिएंट एक वेक्टर मान लिया और B किहड़ा लिया पुत्र ਇਹਦੇ कोफिशिएंट ਜਿਹੜੇ ਆ A B C ਦੇ ਅੱਗੇ 2 1 ਤੇ 3 ਆ ਦੂਜਾ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੀਜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹਾਂ 1 2 ਤੇ 1 ਨਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ तो ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, that is nothing but a dot b equal to 0 है ना, ਇਹਨਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਹੈ, a dot b ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2a plus b plus 3c equal to 0, ठीक है। अच्छा ये भी नोट कर लो, राइट साइड से 0 होवे, कोई 1 2 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो पहली इक्वेशन की है a dot b 0, और ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ होगा कि a vector is perpendicular to b vector, एंड सेकंड इक्वेशन की है पुत्र आ वाली, a है a ਤੇ c ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ है ना, a plus 2b plus 3c equal to 0। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਆ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟੋਰੀਅਲੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ a dot b 0 ਤੇ a dot c 0, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ a ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ b ਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ ਔਰ a ਵੈਕਟਰ c ਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ। ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ c ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ b, a ਵੈਕਟਰ b ਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਤੇ c ਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is given by b cross c, very good। so simple, ਜਿਹੜਾ a ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੀ, that will be given by the b cross c। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, b cross c ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, that is calculate b cross c। ਹਾਂਜੀ b ਤੇ c ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ i j k, b ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ 2 1 3 1 2 1, ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ i, ਹਾਂਜੀ i ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ 1 minus 6 है ना, 1 minus 6 minus 5, ठीक है, माइनस जे वाला क्या 2 minus 3 minus 1, ਹਾਂਜੀ k वाला k ਦੇ ਨਾਲ 4 minus 1 that is 3, so therefore that is minus 5i plus j plus 3k, ठीक है। आई होप समझ आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। सो ये डायरेक्शन कितनी आई है, माइनस, डायरेक्शन रेशियो कितने आ गया -5 1 and 3, this is the direction of the vector a which is nothing but a b c, ठीक है। सो या की करा करो जिदा हुण तुहानूं मैं समझाया, या तो मैथड 1 ला लो है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड, या इतों आ रिलेशन बना के सिंपली आ कोफिशिएंट देखो 2 1 3 ते 1 2 1, इन्हां दा क्रॉस प्रोडक्ट ले लो सीधा, that will be also giving you the dr of abc, ठीक है पुत्र। तो हुण तुसीं जिहड़ा तुहानूं कंफर्टेबल लगदा तुसीं वो मैथड ला सकदे हो, ठीक है। परपस की है ABC दी डायरैक्शन रेशो कढना या ABC दी रेशो कढना, और क्वेश्चन च की हुंदा है इन जनरल कि समहाउ सानूं आ दो रिलेशन पता लग जांदे आ, उत्तों असीं ABC दी रेशो कढ सकदे हां। सो DR आ गए, पॉइंट पता होगा क्वेश्चन च ते आपां जो भी इक्वेशन कढनी वो कढ सकदे हां, ठीक है। थर्ड एक होर ਹੁੰਦਾ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ C ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਜਾਂ B ਇਧਰੋਂ ਵੀ C ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਮਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਕਟੋਰੀਅਲੀ ਕਰਨਾ, ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ तरीके ਤੁਹਾਨੂੰ दोनों समझा दांगा, राइट। तो ਉਹਦੇ अंदर पहला एक नोट लिख लो, ये ਆਪਾਂ लास्ट क्लास भी कर चुके हैं, मैं स्टिल समझा दा कि अगर वो कहे ना कि a line is contained by a plane, ठीक है, ठीक है, line is contained by a plane, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, दो ਇਹਦੇ मीनिंग है। पहला क्योंकि लाइन प्लेन च है, ਇਹਦਾ मतलब लाइन ਜਿਹੜੇ पॉइंट चो भी पास कर रही होगी है ना, क्वेश्चन च गिवन होगा, लाइन ਦੀ इक्वेशन चो ਕੱਢ लोगे। सो एज लाइन इज कंटेन्ड बाय दिस प्लेन, देयरफॉर ਜਿਹੜਾ पॉइंट है, the point from which line is passing, ठीक है, that also lie in the plane या also satisfy the equation of plane, ठीक है। ये तो पहली चीज इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जब भी कहे ना कि एक लाइन है पुत्र वो एस प्लेन च कंटेन कर रही है या आ लाइन एस प्लेन च लाई कर रही है, तो एक इक्वेशन बन जाएगी कि जेड़े पॉइंट चो लाइन जा रही है वो पॉइंट प्लेन दी इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करेगा। दूजी गल, क्योंकि लाइन प्लेन दे अंदर है तो लाइन दी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, है ना, लाइन दी इक्वेशन तो डायरेक्शन रेशो आ जाएगी। मान लो लाइन दी डायरेक्शन B1 दे लॉन्ग है
और इत्थे किते प्लेन दा नॉर्मल होगा, लेट्स से B2 दे लवांगे। सो क्योंकि लाइन प्लेन दे विच है therefore B1 dot B2 0 होगा because it is in the plane therefore perpendicular to the normal. So as it is in the plane therefore the dot product किदा किदा B1 ते B2 दा। B1 की है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, B2 की है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, इत्थों तुहाडे को दो रिलेशन बन जाएंगे। दिस इज बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन, तो इस करके मैं एक बार फिर लिखाता। ठीक है पुत्र, तो एवें करते हैं हुण एक क्वेश्चन तो मैं तुहानू समझाना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस पॉइंट एंड ऑल्सो कंटेनिंग दिस लाइन। तो एक प्लेन चाहिए जिहड़ा इस लाइन नू कंटेन करे, जिद्दां हुण मान लो इत्थे किते लाइन है, लेट्स से वेट, लेट्स से लाइन है इत्थे राइट देयर। तो हुण लाइन नू कंटेन करदे किन्ने प्लेन होणगे, कैन यू थिंक? इस लाइन नू कंटेन करदे किन्ने प्लेन होणगे? इनफाइनाइट। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਲਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਦੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਆ, ਦੂਜਾ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਟੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਓਨਲੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਨ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ, ਬਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ containing this line and passing through this point। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਆਫ ਪਲੇਨ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਬਟ ਲੌਜੀਕਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ, ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ठीक है, तो पॉइंट ते सानू देता उन्हें कि ठीक है प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ते बचा की डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल। तो हमेशा क्वेश्चन नू तुसी किद्दां स्टार्ट करो प्रोसीजरली कि ठीक है लेट द डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन बी ए बी सी। ठीक है, मान लिया नॉर्मल दी डायरेक्शन रेशो की है पुत्र ए बी सी। हुण जिद्दां मैं तुहानू समझाई है कि अगर मैं ए बी सी च दो रिलेशन कढ ला, है ना, तो उत्थों मेरे को डायरेक्शन रेशो आ जाएगी, ए बी सी दी रेशो आ जाएगी। मैं मैथड तुहानू सिखाए, तो लेट अस ट्राई टू सी इफ वी कैन मेक टू रिलेशंस इन ए बी सी। वो पता लग जाएंगे, वो तुहानू मैं हुणे नोट लिखाया। वो कहंदा जी दिस प्लेन कंटेन्स दिस लाइन, आ प्लेन इस लाइन नू कंटेन कर रहा है, और ये लाइन किहड़े पॉइंट चों पास कर दे? दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 3। कैन यू सी 2 1 ते 3? ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ਜਿਹੜਾ प्लेन है वो भी इस लाइन चों पास करेगा। ठीक है, और दूजी गल लाइन की डायरेक्शन रेशो कितनी है? आ वाली इधर नू वैक्टर ना 2 4 1, और ए वाला वैक्टर ये नॉर्मल दे हमेशा परपेंडिकुलर होएगा। आ दो कंडीशन मैं लिखाई हैं, तो लेट अस बिगिन। तो अगर डायरेक्शन रेशो बेटे ए बी सी है, तो अगर पॉइंट मैनू पता है वाला, तो अगर डी आर पता हो तो पॉइंट पता हो, तो एक बार मैं लिख देना कार्टेशियन इक्वेशन की सी प्लेन दी a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू z माइनस z वन इक्वल टू 0। if you remember that was the equation of plane passing through the point x1 y1 z1 and direction ratio of the normal b abc। बस गल खत्म। हुण इत्थों आपां की करांगे, इक्वेशन बनानियां शुरू करते हैं। सो लेट्स मेक द फर्स्ट इक्वेशन। therefore the equation of the plane will be a into x माइनस x1। पॉइंट तुहाडे को दो दो पता है प्लेन ते, जिहड़ा मर्जी चक लो। ठीक है, लेट मी पिक दिस वन। हाँ जी, x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन कितना माइनस वन प्लस वन, c इंटू z माइनस z1 टू इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, वो तुसी लिख लियो सब्जेक्टिवली लिख देना। ठीक है, एंड द डायरेक्शन रेशियो द नॉर्मल बी ए बी सी। हुण सानू पता कि ਜਿਹੜਾ प्लेन है दिस आल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सो
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹ ABC 'ਚ ਉਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ DR ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਸਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਪੁਆਇੰਟ 213, ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ 213 ਹੈ ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ 213 ਵਿਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ। तो x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, ਸੋ 2 - 1 1a प्लस हाँ जी यदि वैल्यू 1, y दी 1 + 1 2b एंड z दी वैल्यू 3 3 - 2 1c इक्वल टू 0। एक रिलेशन आ गया, ठीक है। और दूजा कित्थों आऊगा कि आ लाइन जिहड़ी है क्योंकि प्लेन दे विच है ते ये नॉर्मल दे परपेंडिकुलर है, ठीक है। सैकेंड पॉइंट तो लाइन दी डायरेक्शन रेशो कितनी है 2 4 1 और प्लेन दे नॉर्मल दी कितनी है पुत्र A B C और क्योंकि ये दोनों लाइनां की आपस च परपेंडिकुलर है देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। सो 2a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू 0। इत्थे लिख देना y बिकॉज लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। बस हुण तुहाडे कोल दो रिलेशन आ गए। जे दो रिलेशन आ गए तो तुसी की करोगे ABC दी रेशो कढ लोगे। सो देयरफॉर तुहाडी मर्जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ला दो। सो a बाय जी a वाला कॉलम गया 1 × 2 2 माइनस 4 × 1 4, हाँ जी b वाली टर्म माइनस b बाय b वाला कॉलम छड्डो, हाँ जी AC ते फोकस करो। सो 1 × 1 माइनस 2 टाइम्स 1, ठीक है। सो c बाय c वाले कॉलम ਨੂੰ ਛੱਡੋ इधर 4 × 1 4 माइनस 2 टाइम्स 2 4। सो देयरफॉर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ रेशो आ गई ABC ਦੀ, ठीक है। लेट्स सी इतने स्पेस बनाइए। सो a बाय -2 इज इक्वल टू, हाँ जी इतने भी -1 1 आ जाएगा c बाय 0, ठीक है। और परपस की सीगा अपना ABC ਦੀ रेशो करना ਜਿਹੜੀ आ गई। सो या तो तुसी सीधी रेशो पुट कर दो इतने a ਦੀ वैल्यू -2 a b ਦੀ 1 c ਦੀ 0, या तुसी प्रॉपर रेशो लेनी है तो ये आऊगा a इज इक्वल टू -2 लैम्डा b इक्वल टू लैम्डा c इक्वल टू 0 लैम्डा। जब तुसी आ वाली वैल्यू इतने प्लग करोगे ना बेटे लैम्डा कॉमन आके उधर राइट साइड ते लै जाओ, है ना, तो तुहाडे को इफेक्टिवली आही बच जाएगा। तो देयरफॉर जिहड़ा साडा इवेंचुअल टास्क सीगा कि इक्वेशन लभना प्लेन दी इत्थों आ जाएगी। सो देयरफॉर -2 टाइम्स x - 1, ठीक है, प्लस वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटे मैं, है ना, ये आ वालियां पुट कर रहे हैं, लैम्डा में कैंसिल करता है, c ते 0 आ गया इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing this line and passing to this point, ठीक है पुत्र। सो वंस अगेन ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ नॉर्मल ਦੇ डायरेक्शन रेशो ABC मान लो प्लेन ਦੇ पॉइंट ਸਾਨੂੰ प्लेन ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ कार्टेशियन इक्वेशन एज्यूम कर लो ਆ ਵਾਲੀ और फिर दो रिलेशन गिवन होंगे ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ABC ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ और फिर वटएवर मैथड तुसी या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट उतों ABC की रेशो आ जाएगी, ठीक है। और एक ना मैं जनरल सॉल्व कर देना ये हुण जिहड़े थोड़ा जिन्होंने ज़्यादा इंटरस्ट है स्कूल च नहीं आएगा बट मैं तुहानूं एक सिंपल वे नाल दस देना। मान लो जनरल जिहा कहे कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, containing the line R equal to a1 plus lambda b1 and also containing the point with position vector let's say a2 vector। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन ਨੂੰ मैं जनरलाइज या करता तो ये थोड़ा जा ईजी अंडरस्टैंड करना, ठीक है। सो अगर थोड़ा कंसर्न सिर्फ न्यूमेरिकल कढ़न तक है फिर ऊपर हो गया ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वास्ते भी। तो आ लाइन है कंटेन कर रही है, ठीक है, और लाइन के ऊपर पॉइंट है किहड़ा A1 इत्थे ओरिजिन होएगा किते। तो आ तुहाडे को A1 पॉइंट प्लेन च है और A2 पॉइंट कंटेन हो रहा है ना, तो इत्थों आ A2 पॉइंट दा PV, दिस इज A2 आ ओरिजिन है, राइट। ते लाइन जिहड़ी है दैट इज अलोंग द वैक्टर व्हाट B1, तो इधर B1 वैक्टर है इधरले बंदे इधर उधर किते भी लाइन दे अलोंग और नॉर्मल पुत्तर जिहड़ा वैक्टर दा दैट इज B2, ठीक है, ये सानू चाहिए B2। तो हुण की करांगे B2 की डायरेक्शन चाहिए है तो हुण प्लेन की इक्वेशन लिए की चाहिए
प्लेन के उपर एक पॉइंट ते तुहानूं दो पता है, भावें A1 लै लो भावें A2 लै लो, और बचिया डायरैक्शन चाहिए है जी प्लेन के परपेंडिकुलर है। कैन यू फाइंड इन यूजिंग दिस डायग्राम द वैक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर प्लेन। और ऑलरेडी आप कई बार गल कर चुके हैं, अगर प्लेन के अंदर दो वैक्टर पता हो तो उन्होंने जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। और नज़र आ रहा प्लेन दे विच दो वैक्टर किदा, एक वैक्टर तो प्लेन च हैगा वाला B1 है ना, आ वाला, दूजा किहड़ा है एक आ पॉइंट प्लेन ते एक आ पॉइंट प्लेन ते, तो इन्हों ज्वाइन करके आ वाला वैक्टर किहड़ा आ जाएगा A2 माइनस A1। सो दोनों वैक्टर पुत्र प्लेन च आ गए B ते आ वाला, तो इन्हों का क्रॉस है that will be the direction of the normal. So therefore dr of the normal या normal vector is given by A2 minus A1 cross B या B1 इन्हों मैं क्या। सो आ थोड़े को की आ गया पुत्र, ये थोड़े को आ गया नॉर्मल वैक्टर, पॉइंट जो मर्जी चक लो भावें A1 चक लो भावें A2। so therefore you can write the equation of plane now। therefore equation of plane is R की होंगी प्लेन की इक्वेशन R minus A की होंगे पॉइंट है ना, डॉट B की होंगे नॉर्मल वैक्टर, मैं कर फिर लिख देना R माइनस A डॉट B, वेयर A होंगे सी पॉइंट प्लेन के उपर नॉर्मल डॉट नॉर्मल वैक्टर। तो लेट अस प्लग इन द वैल्यू R माइनस, हाँ जी वट हुण भावें इत्थे A1 लै लो भावें A2 क्योंकि दोनों पॉइंट प्लेन ते है, डॉट नॉर्मल वैक्टर नॉर्मल आ A2 माइनस A1 क्रॉस B1 इक्वल टू 0। सो दैट्स इट, ऑब्जेक्टिवली पूछे तो आ भी है, और स्केलर ट्रिपल भी लिख सकते हो A डॉट B क्रॉस C, R माइनस A1 A2 माइनस A1 एंड B1 इक्वल टू 0। सो अगर तुहानूं आ समझ आई है तो इदा भी आसान है, पॉइंट माइनस किया है ना, दो पॉइंट है A2 माइनस A1 कढ़िया तो B ना क्रॉस लिया वो नॉर्मल आ गया है ना, पॉइंट चक्को तो फिर सीधा सॉल्व कर लो। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस ऑब्जेक्टिवली तो इदा भी कर सकते, नहीं तो प्रोसीजर में तुहानूं दसदा, ठीक है। और मैं ऑलरेडी कहना 3D इज़ लाइक के ਜਿਹੜਾ टॉपिक है डायरैक्ट सीधे थोड़े बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, जिदा मैं टॉपिक वाइज तुहानूं करा रहा। सो सेम क्वेश्चन यू सी कि दैट बिन रिपीटिंग इन द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड कंटेनिंग द लाइन। सो ये तुसी मैच कर लो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम उपर वाला, ठीक है। अच्छा हुण आ कहंदा कि फाइंड द इक्वेशन द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स। ना ये भी तुसी मैथड सीख लो। अगर तुम देखो आ दोनों लाइन है ना पैरेलल है, तो कहता कि प्लेन की इक्वेशन लभो जिहड़ा आ दोनों पैरेलल लाइन को कंटेन कर रहा। इफ यू गाइस रिमेंबर जिहड़ियां पैरेलल लाइनां होंदियां पुत्तर कोप्लेनर होंदियां, पैरेलल लाइन भी कोप्लेनर होंदियां ते हाँ जी इंटरसैक्टिंग लाइन्स भी कोप्लेनर है, स्क्यू नहीं होंदियां। तो ये दो क्वेश्चन ये बनते हैं, तो वो की कहेगा दो तुहानूं पैरेलल लाइन दे देगा, वो कहेगा फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू पैरेलल लाइन, या इंटरसेक्टिंग लाइन दे देगा फिर वो कहेगा फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू इंटरसेक्टिंग लाइन। और मैथड जिहड़ा आ वाला मैथड मैं कराने जा रहा इदां दा ही आई, ठीक है। सो लेट अस डू ते चलो जिद्दां आपां उपर कीता ही है पहला प्रोसीजरली कर लईए, ठीक है। डायग्राम इत्थे बना लैंदे। सो आप पहली लाइन ले लो, ठीक है। तो दिस इज द लाइन 1, लाइन 1 लाइन 2, पहली लाइन है प्लेन च, दूजी लाइन पैरेलल है। हुण पहली लाइन किहड़े पॉइंट चो पास कर रही है, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। सो फर्स्ट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड -1, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि लाइन प्लेन च कंटेन हो रही है तो ये जी लाइन है ये पॉइंट है प्लेन ते भी लाया करेगा। और दूजी लाइन किहड़े पॉइंट चो पास कर रही है 3 3 -1, सो इसका मतलब 3 3 -1 प्लेन ते भी लाया करेगा, तो दो पॉइंट आ गए प्लेन ते। ते लाइन किहड़ी डायरेक्शन च है, वैक्टर किहड़े लॉन्ग है 2 3 एंड 1, सो लाइक कोई भी ले लो क्योंकि सेम डायरेक्शन ही है। therefore line is along this vector and that is 2 3 and 1। तो हाँ जी हुण जिद्दां आपां तुहानूं दस्सिया ही है एक तरीका, तो की करिए कि let the direction ratio of the normal of the plane be ABC, normal दे dr, राइट। हुण अगर ABC नॉर्मल दे डायरेक्शन रेशियो है पुत्तर, ते प्लेन दी इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट विद dr दिस की होगी
कोई भी पॉइंट चक लो, मैं आ वाला ले लेना। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी टेकन एज a into x minus 1 plus b into y minus 2 plus c into z minus 1, ठीक है, इक्वल टू 0 आ प्लेन होगा। हुण प्लेन एज पॉइंट भी पास करे, हुण बिल्कुल रिपीट हो रही चीज़ जी उपर कराई है। सो प्लेन इज ऑल्सो सारा तुसीं लिख देना ऑल्सो पासिंग थ्रू 3 3 minus 1, ये मतलब ए वाला पॉइंट भी प्लेन की इक्वेशन नू सैटिस्फाई करेगा इत्थे x y z, राइट। सो लेट अस प्लग द वैल्यू, x की वैल्यू 3 3 minus 1 2a 3 minus 2 1b and minus 1 plus 1 0c. So this is one equation in ABC। और दूजी किदा कि ਜਿਹੜਾ नॉर्मल है क्योंकि आ लाइना प्लेन च है तो इसका मतलब आ डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है, ठीक है। एज द लाइन आर इन प्लेन देयरफॉर परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, देयरफॉर 2a plus 3b plus 1c equal to 0, that is the second relation। and दो रिलेशन आ गए, इन्हां तो तुसी ABC ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। इज दैट क्लियर। और अगर वो कहना ना लाइना, आई होप आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ समझ आ गई है, मैं ਹੁਣ रब कर रहा ABC ਇੱਥੋਂ आ जाऊगा, ਇੱਥੇ प्लग करो ABC, ਤੁਹਾਡੇ को प्लेन ਦੀ इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है पुत्र। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया। और अगर मान लो कहना ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना, मान लो तो लाइन पैरेलल ना दे के मतलब इंटरसेक्टिंग दी होनी है, तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है ना, क्योंकि दो लाइना जी इंटरसेक्टिंग है, प्लेन उन्होंने कंटेन कर रहे हैं, तो अगेन दो पॉइंट होंगे जिन्हों जो प्लेन पास करेगा। सो बिल्कुल इदा ही चलांगे, पहला स्टैप प्लेन की इक्वेशन लिख लांगे पासिंग थ्रू वन पॉइंट, फिर दूजा पॉइंट नू सैटिस्फाई करा देंगे। और क्योंकि आ दोनों लाइना प्लेन च है तो मतलब नॉर्मल दे परपेंडिकुलर है, तो कोई भी एक लाइन चक्को जिदा आ वाली लई आप ABC ना डॉट 0 करता, तुहाडे कोल समा एक कंडीशन एक्सट्रा ही होंदी है ना, तो इस करके अगर इंटरसेक्टिंग गिवन है तो तरीका प्लेन फाइंड करन दा बिल्कुल सेम है। तो अगर तुसी वैक्टोरियली तुहानू मैं समझावां, लेट मी शो यू, मान लो उन्हें क्या है कि प्लेन लभो, है ना, ये हुण जे क्वेश्चन उपर समझ आ गया फिर एडिशनल है ना, ये जेडे थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं। मान लो दो लाइना पैरेलल है, प्लेन लभना है, तो पहली लाइन होगी लेट्स से R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है। सेकंड होगी R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B। तो अगेन ये दोनों लाइना पुत्र प्लेन च कंटेन हो रही है, मतलब जेडे पॉइंट चों पहली लाइन जा रही है, जेडे चों दूजी लाइन जा रही है, ठीक है। हुण आई गेस हुण तक तो समझना शुरू हो गया होगा। सो ये दोनों पॉइंट भी प्लेन च होंगे, पोजीशन वेक्टर मैं बना रहा, ठीक। तो लाइना किहदी डायरेक्शन च बेटे B, तो इधर वैक्टर कोई भी ले लो B। तो हुण नॉर्मल चाहिए, पॉइंट तो तुहानू दो पता है, हाँ जी। किद्दां कढांगे नॉर्मल लई, अगर प्लेन च दो वैक्टर आ जाए तो क्रॉस ले लोगे, एक वैक्टर तो पता ही है नज़र आ रहा B, दूजा किहड़ा है आ ले लो A2 माइनस A1। सो दीज टू वैक्टर्स आर इन द प्लेन, देयरफॉर देयर क्रॉस will give us the normal। So normal will be again A2 minus A1 क्रॉस B। नॉर्मल आ गया, पॉइंट चक्को, इक्वेशन आ जाएगी सिमिलरली, ठीक है बेटे। तो लेट अस मूव आगे, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस पॉइंट एंड द प्लेन जिहड़ा सानू चाहिए दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दीज प्लेन्स। ओके लेट स्टार्ट। तो की करिए, शुरू करते हैं कि लेट द dr ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, जिहड़ा साडा प्लेन चाहिए ਉਹਦੇ नॉर्मल की डायरेक्शन रेशो की मान ली आप ABC। डायरेक्शन रेशो ABC चाहिए है, मतलब ABC सानू दो इक्वेशन चाहिए, पॉइंट सानू प्लेन च पता है, तो पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशो यूजिंग दिस इक्वेशन की होएगी प्लेन दी A इंटू एक्स माइनस 1 B इंटू वाई माइनस माइनस 1 C इंटू Z माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वो प्लेन है पुत्र जेड़ा एस पॉइंट चो पास कर रहा है और जिहदे नॉर्मल दी डायरेक्शन रेशो किन्ने है पुत्र ABC। तो हुण पुत्र की कहंदा कि जिहड़ा साडा रिक्वायर्ड प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स। तो हुण असीं ऑलरेडी पढ़िया है ना एंगल बिटवीन द प्लेन्स दे अंदर कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होण है ना, तो क्लीयरली उन्हां दे नॉर्मल भी
परपेंडिकुलर है ना साडा। अब मान लो रिक्वायर्ड प्लेन है आ वाला, तो ये नॉर्मल सानू पता है ABC, तो आ दूजा प्लेन है ये पता है 2 3 -2, तो इत्थों साडे कोल एक इक्वेशन आ जाऊगी ABC है ना। ऐदा ही क्योंकि साडा प्लेन आ दूजे दे भी परपेंडिकुलर है, इत्थों साडे कोल दूजी इक्वेशन आ जाएगी ABC और ABC आ गई दो इक्वेशना, तो आपां ABC की रेशो कट सकते हैं। तो चलो कंडीशन ला दें। नाउ जो साडा रिक्वायर्ड प्लेन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और ये डी आर किन्ने, लेट्स से डी आर ऑफ दिस प्लेन इन मान लो P1 तो इन मान लो P2, रिक्वायर्ड प्लेन मान लो P। सो डी आर ऑफ द नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 इज़ 2 3 -2 and dr of the normal of plane 2 is 1 2 and -3, ठीक है। so as P is perpendicular to P1 therefore हाँ जी ये पता है P दे, so n the dot product, so 2a plus 3b minus 2c equal to 0, and also as P is perpendicular to P2 so आ वाला ये भी perpendicular है, तो therefore a plus 2b minus 3c equal to 0। इथों I leave this part to you, तुसी ABC दी रेशो कढ़ के इत्थे पुट कर दो, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो बड़ी बार आ चुके हैं जेई ना ऑलरेडी, जिवें दिस इज द क्वेश्चन, द प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू प्लेन्स। जेई एडवांस 2017 भी क्वेश्चन आया है, तो मेन्स 19 भी, ठीक है। और आई होप क्लीयर है इन्ना है ना। तो इस टॉपिक के पुत्र जोड़े होर क्वेश्चन है ना मेन एडवांस, लेट्स डू, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कहा इट्स लाइक दे आर ऑल बोर्ड लेवल क्वेश्चन, और इस करके मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ लेक्चर के टॉपिक वाइज याद हो है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कंटेंट बड़ा लिमिटेड जो है बट और रिपीटेटिव है और चेते हो सारा। तो हम क्वेश्चन है जेई एडवांस 13 का, कहना 2 लाइन है L1 तो L2, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं मैं कराँगा, सिर्फ थीम समझा दाँगा। तो 2 प्लेन दिते हैं P1 तो P2, ठीक है। दीज 2 प्लेन्स आर गिवन, द 2 लाइना गिवन है। फिर कहना एक आ प्लेन है, लेट दिस बी द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, हम प्लेन है ये इक्वेशन चाहिए है कि जो पास करता प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। थोड़ा रिक्वायर्ड प्लेन है पुत्र दैट इज पासिंग थ्रू द intersection of L1 and L2. Now L1 and L2 the point of intersection, तो basically ना मेन एडवांस सिर्फ इन्ना की फर्क होंदा है कि क्वेश्चन जो थोड़ी लेंथ वधा दिंदा है। हुण जिद्दां तुहानूं दोनों लाइनां L1 L2 पता है, तो तुसीं दोनों लाइनां दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व कर सकदे हो, दैट यू नो, ठीक है। इत्थे वेरीएबल पॉइंट लो लैम्डा दी टर्म च ते म्यू दी टर्म च साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तुहाडे कोल L1 L2 दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। आई होप इन्ना तुसीं कर सकदे हो जे तुसीं इस लैक्चर तक पहुँच गए हो। तो सॉल्व करके मान लो तुहाडे कोल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ए, ठीक है बेटे, ये पता लग गया विच इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2। चलो तक आ गया आप, तो पॉइंट पता लग गया प्लेन के उपर। फिर वो कहता द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन P1 एंड P2, ठीक है। जो साडा प्लेन है वाला ये P1 ते P2 दोनों दे परपेंडिकुलर है। तो I hope you remember what you just did 10 minutes back, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो आ दो प्लेन साडे रिक्वायर्ड प्लेन दे परपेंडिकुलर है ना, दो प्लेन साडे रिक्वायर्ड प्लेन दे परपेंडिकुलर है। तो इत्थों तुहाडे को ABC च दो रिलेशन आ जाएंगे, पॉइंट प्लेन दे उपर तुसीं इत्थों कढ लेना। सो पॉइंट पता है एंड वी नो द कंडीशंस, 2 कंडीशन इन ABC एंड ABC मतलब नॉर्मल एलोन, डोंट कंफ्यूज विद दैट। तो थोड़े को प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर तुसीं ABC मैच कराना है, राइट। अगे क्वेश्चन है कहता कि 19 मेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो ये कर दें, प्लेन एस लाइन नू कंटेन कर रहे, तो यदा मतलब की हो गया कि जिहड़ा आ लाइन है किहड़े पॉइंट चो पास कर दी पुत्र 0 0 0 चो, सो देयरफॉर प्लेन भी 0 0 0 चो पास करेगा, पहली चीज़। और आ लाइन किहड़ी डायरेक्शन च इधर 2 3 4, ठीक है। तो नॉर्मल इहदे की होगा परपेंडिकुलर होगा। तो एक रिलेशन तुहाडे को आ गया किहदे च ABC च। तो स्टार्ट कित्थे करांगे, लेट द नॉर्मल ऑफ द प्लेन बी ABC एंड
equation of plane now can be taken as a into x minus 0, ठीक है, passing through this point, b into y minus 0 and c into z minus 0 equal to 0. So plane आ गया ax plus by plus cz equal to 0. ਹੁਣ क्योंकि आ लाइन कंटेन हो रही है प्लेन च तो देयरफॉर नॉर्मल दे परपेंडिकुलर है, तो रिलेशन क्या आ गया पुत्र? हाँ जी, लाइन दे डी आर किन्ने है 2 3 4, नॉर्मल दे ABC, so therefore we have 2a plus 3b plus 4c equal to 0. एक इक्वेशन आ गई साडे को, ठीक है। सेकंड वो कहंदा है equation of plane containing this straight line and perpendicular to a plane, साडा plane एक होर plane है ਉਹਦੇ perpendicular है, so ਜਿਹੜਾ ਉਹ plane है that is containing these two line. So let me just simplify that. ਆ ਹੁਣ ਉਹ plane ਹੈ p dash ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ p dash plane ਚ let's say ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ 3 4 ਤੇ 2 ਵੱਲ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ 4 2 ਤੇ 3 ਵੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖੁਦ ਕਿ ਆ p dash ਜਿਹੜਾ plane ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ p dash ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? p dash ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। तो what you gonna do, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈ ਲਓ, that is going to give me the direction of normal of this p dash plane, ठीक है। तो मान लो ये नॉर्मल कुछ भी आ गया अल्फा बीटा गामा, आ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, ठीक है, आ ਤੁਸੀਂ क्रॉस लेके आ जाएगा, ठीक है, समझे गल? तो अल्फा बीटा गामा ਤੁਹਾਨੂੰ known है ਹੁਣ, राइट। वो कहंदा की सी पुत्र कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ plane है that is perpendicular to this plane containing these two line। तो effectively ਸਾਡਾ plane as plane p dash ਦੇ perpendicular है और p dash ਦੇ dr ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ अल्फा बीटा गामा ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ क्रॉस लेके। सो मान लो हाइपोथेटिकली या 3 4 5 या 3 4 7 आ गए, मान लिया फॉर एग्जांपल, पता नहीं की होने। तो हुण p डैश दे तुहाडे कोल नॉर्मल दे dr आ गए और p डैश जिहड़ा प्लेन है वो साडे प्लेन दे परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इत्थों दूजा रिलेशन आ गया। सो 3a plus 4b plus 7c is 0, ठीक है। सो दिस इज हाइपोथेटिकल, तो जो भी आऊगा तो आ तुहाडे कोल दो रिलेशन आ गए ABC च, इत्थों फिर तुहाडे कोल ए बी सी दी रेशो आ जाएगी एंड तुसी प्लेन दी इक्वेशन कट सकते हो, ठीक है। आई होप गल समझ आ गई। तो आ वधिया सी सवाल। तो अगे एडवांस दा क्वेश्चन है, द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स, साडा प्लेन आ दोनों प्लेन दे परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, एंड पासिंग दिस पॉइंट। तो फिर देखो सेम क्वेश्चन पहला भी आ चुका है, तो तुहानू पॉइंट पता है ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਪ ਐਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭੋ ਪਲੇਨ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲਿਆ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਐਂਡ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ। हाँ प्रॉब्लम भी पुत्र एक 2010 एडवांस भी आ चुका है तो 19 मेन्स भी सीगा ਇਹੋ ਜਿਹਾ। तो हले ना ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस, तो ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, प्लेन कंटेनिंग द लाइंस दीज टू, ठीक है। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, तो ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ प्लेन विच इज कंटेनिंग दीज टू लाइंस। ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ इंटरसेक्टिंग लाइनां एक प्लेन च कंटेन हो रही है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग क्यों? क्योंकि स्क्यू ते प्लेन च होंदियां नहीं। तो ऐस इनफॉर्मेशन तो ना असी ऐस प्लेन दी इक्वेशन कढ लांगे, फिर अगे वाला पार्ट वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन उत्थे भी मैं देख लांगा, ठीक है। सो सिर्फ इन्ने ते फोकस करना टिल टुडेज लैक्चर। हाँ जी, किवें करांगे कर ली फटाफट। पहली लाइन किहड़े पॉइंट च पास कर दी है 1 2 3, दूजी लाइन 2 3 4 च पास कर दी, ठीक है। तो पहली लाइन किहड़ी डायरेक्शन च है, इधर नूं वैक्टर ले लो इधर नूं। चलो पहला बाद च होने, पहला इक्वेशन लिख ली प्लेन दी। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through this point and direction ratio of the normal ABC can be taken as what, a into x minus 1, ठीक है, and plus b into y minus 2 plus c into z minus 3 equal to 0। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ प्लेन है वाला ये 2 3 4 ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ मतलब 2 3 4 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ
ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ। ਸੋ 2 - 1 1a plus b plus c equal to 0 ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ, तो ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਵਟ 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਔਰ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਨ ਚ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੇयरफॉर 2a plus 3b plus 4c equal to 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ABC ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ 3 4 5 ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 3 4 5 ਉਹਨਾਂ ਡਾਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਆਏਗੀ, दैट यू कैन चेक आउट। तो ABC आ गया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯੂ ਸੀ ਕੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਰਿਪੀਟੇਟਿਵ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਅ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਪਲੇਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਲੇਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਲੇਨ passing through a point and perpendicular to two planes। तो हालांकि मैं प्रोसीजर चंगी तरह समझाता है, बट यू शुड बी एबल टू फ्लुएंटली एबल टू सॉल्व, राइट। तो चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास चलते हैं।